rants. I hope you all are doing well. We have a different location today. Obviously, you all can't tell. Maybe you all can't tell. You all can tell because the maybe sound might be different, the voice might be different. So let me know how you feel about it. Like in the location is different today, cause it's May, okay? So for the past 5 months, I was recording this podcast in my storeroom, which is in my own room, because I didn't needed a fan or anything, and I was comfortable recording in that room. But it's very hot now, and I cannot record podcast without having fan or air conditioner. So we are in my drawing room today, and it's my storeroom was really compact and it have a lot of blankets and a lot of stuff in it. But in my drawing room, there's not a lot of stuff, and the curtain is a net curtain. It's not even like a thick curtain, so I don't know how the voice is coming in. I know I did a test thing and it sounded fine to me. So I really wanted you to know how you all felt. Is this a different matlab कि I don't want to give you guys a bad listening experience. Like I would willingly sit in the drawing room and sweat, but I want a good voice for the podcast. Not a good voice, but like a good sound, because I want a good sound experience, good listening experience for you guys. I can't speak. Okay, so this is the thing. Like, I hope it's working fine. Because I did a test thingy, but I did it for 10 seconds, so I don't know how it might be like for an hour. But I hope it turns out well, because I don't want to sit. I don't want to sit in a storeroom. Like, for your listening experience, I would. But the second option, our AC is also very noisy. So I don't know okay, if that would help. I think it would help because there wouldn't be that much interruption. But I am not in the state where I could tell everyone to get out of the room, and because I want to record the podcast in air conditioner. और ऊपर से जो है it's 12 a.m. so everyone is there in their room sleeping. And yes, I'm again recording this podcast late at night. पिछली बार I recorded in the morning. I don't know if there was a difference in energy or what. I would really love to know if you guys can tell. Okay, Rabia recorded a podcast in morning, so there was a difference in her energy at night and at morning. So I do not know, but I would love to hear it from you guys. The topic for today is that I know a lot of people who are listening to this podcast have their exam season, especially if you're in high school. वैसे 9th 10th के तो एग्जाम हो गए हैं, so it's okay, you can listen to it for बात की motivation. लेकिन a lot of people are going through exams. Even if you're not going through exams, you might be having मतलब obviously you still do study, and I know a lot of people who still study and are listeners to this podcast. Wow, I really can't speak today, please bear with me. But the thing is that today's episode is all about how to prepare for exam and how to study productively and how to make a successful study session without having an academy if you are studying by yourself, or if you have exam near, of if you have vacations and you don't go to academy anymore, and or even if you go to academy but you still need मतलब you still prepare or learn or whatever you do at home, and then at academy or your college or school you give tests or you take lectures, but still you have to memorize that thing at home or understand. You do understand it at class, like you have to memorize it at home. So isliye this podcast is all related that I'll share my experience, I'll tell you what works, I'll tell you where I went wrong and where I failed, and I would tell you but advise you all to not do it. So today's episode is about that, and make sure you are subscribing to the podcast from whatever platform you're listening to it. Please subscribe. It's not that difficult, and it would make me really happy. And I would notice, because I don't have a lot of subscribers, and a lot of people who listen to it are not really subscribed to it, so it makes no sense. Like, do subscribe to it and do give it a 5-star rating. Maybe we could trend again. My first episode and my second episode trended, and I get it. Obviously I launched it, so everyone went in and
listen to it, लेकिन those who actually were interested stayed. So I would really like to get it on trend another day, लेकिन it was a good moment for me to get it on the trending page. So make sure to give it a 5 star. And yeah, I'll be right back and we'll jump right into the topic. I didn't take much time for the introduction today. Hey, so you all, there's a chance that you all might have listened to my academic journey podcast. If you haven't, then go listen to it. Maybe go listen to it afterwards that. Like go listen to it because there's a lot of information in there. But if you have listened to my academic journey podcast, you might know that I wasn't a good student in my high school era or before high school. I was a very average, or you might say below average, a girl, because the girls in my class, the other class fellows, were very, very intelligent. So it was a lot. But in college, I would come in the middle, or maybe I was a bit better because in that class everyone else have lower marks than me. But in school, I was like I was in the bottom. So basically that's the thing. But in university, I don't know what happened, what miracle, what magic happened, but I just was considered on the top. What I was not, like, there were girls who got more marks than me, but I was considered one of the most like high scorers of the class, and I would brag that honestly, because like I am proud of that thing. That there was a time when I didn't even know if I would pass or not, and then there's this time when I would cry even if I would lose 1 marks, because I want to achieve over 90 to get a 4 GPA. So I would tell you all how both of my phases were, because I know how it is to be a nerd and I know how it is to be a loser. To be an underachiever, maybe to मतलब you might have the goal that you just want to pass the exams, and I don't think that that's a bad thing, because I have done that too. So I know the both ends, so I can tell, maybe both ends can relate to it because I have done both of this thing. So it's not like कि I am some great high achiever जिसको गोल्ड मेडल, ऑब्वियसली मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला हुआ, जिसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है या जिसके मैट्रिक और एफएससी में 1000+ मार्क्स आए हुए हैं। नो, मैट्रिक एफएससी में तो बस मुझे था कि मैं एडमिशन क्राइटेरिया से आगे हो जाऊं, और फिर यूनिवर्सिटी में आई डिड स्ट्रगल अ बिट फॉर द मार्क्स, बट इट वाज बिकॉज द फील्ड आई वाज स्टडिंग आई रियली लव्ड इट, or that's the thing. So I would tell you guys that there's a difference between school or college की पढ़ाई, board के exams की पढ़ाई, या A levels की पढ़ाई, I think is a whole different thing, and I haven't experienced that. But I think it's more मतलब के related to the university studies, क्योंकि concept होते हैं, लेकिन I can tell कि how different it is, या how it differs. For me, when I was in 9th, 10th, and first year, second year, obviously my goal was not to just pass. Lekin in 9th, 10th, I had this goal ke, oh, I want 900+ marks, which obviously I didn't got. Or in FSC, I had I want 60+ marks. Again, I didn't got that either. So, lekin I did have some goal. It was not just ke, oh, I just want to pass this uh, this मतलब कि FSC or pre-engineering or metric. लेकिन the thing is that कि for me, I didn't even try it. मतलब कि I honestly didn't even try. Especially in college, I stopped trying. मुझे पता था कि ओ आई कांट स्टडी केमिस्ट्री, एंड आई स्टॉप ट्राइंग. मैं बस उतना करती थी कि मैं बस पास हो जाऊं. हाँ, मुझे 60% प्लस चाहिए थे, लेकिन केमिस्ट्री में आई स्टॉप ट्राइंग. और स्कूल में आई डिड ट्राई टू वर्क हार्ड, लेकिन आई थिंक द वर्क हार्ड वाज दैट कि आई वाज गोइंग टू स्कूल, देन आई वाज गोइंग टू अकेडमी, एंड आई वाजंट स्टडीइंग ऑन माय ओन. आई हैव टू टेक टाइम टू मेमोराइज इट, लेकिन मैं बस वो एक रूटीन में रोबोट की तरह चल रही थी, और मैं उस चीज़ को नहीं कर रही थी. और असल में पता है क्या होता है, व्हेन यू गेट वेकेशंस के ओ यू हैव दिस मंथ वेयर यू कैन स्टडी ऑन योर ओन, स्कूल बंद है और एकेडमी भी नहीं जा रहे, बस मतलब कि अब टाइम पेपर से पहले 1 महीने का है, उस टाइम में आई वुडेंट स्टडी, क्योंकि मुझे मेरी मर्जी, मैं
पढूं ना पढूं, क्योंकि आई वॉजंट हेल्ड अकाउंटेबल बाय एनीवन, और इस वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। और एंड पे आके फिर जो जितना मुझे आता था बस मैं उसको करके चली जाती थी, और फिर पेपर जाके मुझे वो भी भूल जाता था, उसमें भी नहीं मार्क्स आते थे। सो बेसिकली आई थिंक कि समवन इज एक्सपर्ट इन मेट्रिक हु नोज के आपको कैसी तैयारी करनी है या किस तरह मार्क्स लेने हैं। आई डोंट नो हाउ टू टेक मार्क्स इन बोथ, लेकिन आई नो हाउ टू मेक योर सेल्फ study productively, क्योंकि then I tried to do it in university era and I succeeded in that। और अगर शायद मैं मैट्रिक में भी उतना ध्यान, obviously in metric FSC I wasn't a science student, तो मेरे जहन में वो चीज़ें पढ़ ही नहीं रही थी जो कि मैं पढ़ रही थी, कि आई didn't knew the understanding of it, मुझे पीछे से बैकग्राउंड सारा नहीं पता था, लेक्चर में ध्यान से सुन नहीं रही थी, अकल में मेरे कुछ पढ़ नहीं रहा था, और इट wasn't for me। सी, तो इस वजह से आई डिडंट इवन ट्राइड, एंड आई एम सो ग्लैड आई डिडंट इवन ट्राइड। मैं क्यों खपूं ऐसी चीज के लिए जो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। एंड आई डिडंट वांटेड टू डू एफएससी, आई वाज फोर्स्ड टू डू एफएससी। इफ यू माइट हैव मतलब heard my episode of my academic journey, तो I was forced to do my FSC, वरना मैं आराम से ICOM करके I would have gotten much more marks and maybe I would have been in a better university for my field। वैसे वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बट लेकिन मेरी फील्ड में उसकी इतनी अच्छी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। इट्स ओके, इट्स नॉट द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बट इट हैज़ अ गुड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मुझे इतना वैसे अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर द थिंग इज दैट के फॉर मेट्रिक एफएससी तो मुझे अब होता है कि ओ मैं तब ये कर लेती तो दिस वुड हैपन, लेकिन फॉर यूनिवर्सिटी आई स्टडीड माई एस ऑफ, not as of, no, that wasn't a correct sentence to use, लेकिन I studied hard, I tried to I tried to fight for every single marks ever, and I tried to get the highest marks, not the highest marks, the highest marks that I could achieve, not in the class, लेकिन that I could physically and mentally achieve the highest marks for that, and I tried my best for university and it मतलब कि the results were very very good। बल्कि आई थिंक कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर रही थी ना, यूनिवर्सिटी में भी मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मेरी थोड़ी सी मेहनत से इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तो मैं सोचती हूँ मैं और मेहनत कर लेती ना तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते, लेकिन खैर क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वट एवर पोजिशन यूर इन, सबसे पहले यू नो व्हाट्स योर गोल, और आप पैनिक कर रहे हो कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मैं फलां हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप सबसे पहले बैठो और कहो कि ओ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली फेल होना, वी हमें फेल नहीं होना ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इट सक्स टू गिव अनदर अटेम्प्ट इन यूनिवर्सिटी। फेल होना इज़ फाइन, क्योंकि इट्स नॉर्मलाइज, इट्स नॉट दैट बिग डील। आप उस कोर्स को रिपीट कर सकते हो, मैंने खुद कोर्स इम्प्रूव किए थे, आई नेवर फेल्ड बट आई डिड इम्प्रूव कोर्सेज। तो मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में इट्स अ बिग डील अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू फेल। और बोर्ड में तो इट सक्स फेलिंग। आई हैव नॉट फेल्ड, शुक्र है अल्लाह का, मैं किसी ना किसी तरह पास हो गई, लेकिन आई हैव सीन मतलब माई फ्रेंड्स हु फेल्ड एंड इट सक्स टू क्लियर इट। तो इफ़ यू आर इन दैट पोजिशन विच आई नो मोस्ट ऑफ यू आरंट, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले रिजल्ट आया था और ट्विटर पे एवरी वन वॉज लाइक I got 96 marks percent marks, I got 90% marks, I got 86% marks, I got this marks। किसी के 80% से नीचे नहीं थे, बल्कि 90% से नीचे किसी के नहीं थे, और मैं हैरान थी। और जब भी कोई रिजल्ट आता है, अभी तो ये इंडिया का था ना, पाकिस्तान में भी जब मैट्रिक एफएससी का रिजल्ट आता है, मैं लोगों के मार्क्स देख के हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार 50 किसी के मार्क्स नहीं आए, 50%, कोई 60% पे खुश नहीं है। या मुझे लगता है कि वो बच्चे बेचारे कहते होंगे कि यार हम सब अपने इतने फ्लॉन्ट करें मार्क्स, तो हमारे हम क्यों करें, लेकिन इट्स ओके इफ़ यू आर दैट। तो आई वुड टेल यू कि मेरे बहुत बुरे मार्क्स थे, और मैं अभी हर किसी को बहुत प्राउडली बताती हूँ कि हाँ मेरे एफएससी में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, क्योंकि आई इम्प्रूव्ड इन यूनिवर्सिटी। तो या, सो द थिंग इज दैट कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग आउट के, और आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, जैसे वन ऑफ माई डियर फ्रेंड समा, शाउट आउट टू समा, शी वॉज टेलिंग मी कि ये जो पिछले हफ्ते पूरा
केओस हुए हैं पाकिस्तान में, उसकी वजह से उनके दो एग्जाम्स, चीज इन ओ लेवल्स आई गेस, तो उसकी वजह से उसके दो एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए और वो फिर कभी भी नहीं होने, और अब वो अपनी मर्जी की ग्रेडिंग करेंगे। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि यार यू ट्राइड योर बेस्ट, यू डिड व्हाट यू हैड टू डू टू पास दिस एग्जाम, यू डिड व्हाट यू फेल्ट वाज राइट, तुमने अपने से कुछ भी किया, अब आगे से जो भी मार्क्स आए उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आपने आगे कॉलेज जाना है, आपको अभी लगता है कि यार मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, कनेड कॉलेज मुझे जाना है, मुझे लाहौर कॉलेज जाना है, या मुझे इस यूनिवर्सिटी जाना है, उस यूनिवर्सिटी जाना है, जब एक बार आप उस इंस्टीट्यूट में चले जाते हो ना, या आप उसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक दोस्त जो है वो एनसीए से आर्किटेक्चर कर रही है, और मेरी एक दोस्त जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आर्किटेक्चर कर रही है। ऑब्वियसली एनसीए इज़ अ ब्रांड और उसका नाम है, लेकिन मुझे ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे उनके मोड ऑफ स्टडी से कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, बल्कि जो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाली दोस्त है, आई थिंक शी इज़ गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड शी गॉट मोर एक्सपोजर एक्सपोजर फ्रॉम हर यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक कि मैं, अगर कोई मेरी दोस्त एक यूसीपी से बीबीए करी थी, और मुझे लगता है कि यूसीपी वो लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे, तो एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ आके इक्वल हो जाती है, आप पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो द वर्स्ट कंडीशन डजेंट एग्जिस्ट। आपको किसी यूनिवर्सिटी के पीछे पागल होना ही नहीं चाहिए कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में ना गई तो मैं नहीं जी पाऊंगी। आपको यूनिवर्सिटी के नाम से या यूनिवर्सिटी के ब्रांड से कभी भी अपनी फील्ड डिसाइड नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा ये चूज़ करना चाहिए कि ओह मैंने क्या करना है, और आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए। जैसे मेरा ये था कि आई वांटेड टू गेट इन रिस्पेक्टेबल, नॉट रिस्पेक्टेबल लेकिन अ नोन यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके लिए मैं अपनी फील्ड कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी। इस वजह से मैंने कॉमसैट्स में अगर अप्लाई करना था तो मैंने उसमें सीएस में नहीं, मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया, और मेरा हो गया एंड आई वाज हैप्पी बाय दैट। तो अगर आपको फिर तो मुझे लगता है कि आपको अपने लिए ऑब्वियसली डू और डाई सिचुएशन नहीं रखनी चाहिए। यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि ओ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और इतनी चीज़ों पे स्ट्रेस आउट नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप, नहीं कोई फ़र्क पड़ता, ट्रस्ट मी नहीं फ़र्क पड़ता, या अनलेस यू आर गोइंग टू लम्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन फॉर दैट यूनिवर्सिटी। आई थिंक के ऑब्वियसली दे हैव अ ह्यूज कॉन्टैक्ट और वो सब कुछ भी, एंड दैट्स नॉट द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे कि किस यूनिवर्सिटी के आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर मी पर्सनली ऑब्वियसली आई ग्रेजुएटेड, मेरे दोस्त दूसरी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट हो, या मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पता लगा कि ओ उस यूनिवर्सिटी के बच्चे को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे नहीं मिली, या मेरे जो दोस्त हैं उनको शायद इतनी अच्छी नहीं मिली। ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट के ओ लम्स का जो ग्रेजुएट है उसको ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही है और मुझे ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिल रही, लेकिन आई हैव टू सी द फैक्ट कि जो जितनी मैंने अपनी पूरी सेमेस्टर की डिग्री की फ़ीस दी है वो उनकी एक सेमेस्टर की फ़ी है जितनी मेरी पूरी डिग्री की है, और आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड दैट, तो आई डिड व्हाट वाज बेस्ट फॉर माई सेल्फ, व्हाट सिचुएशन आई वाज इन। तो यू कांट ब्लेम, or you can't blame yourself when you tried the best and you did the best you could have done. I hope this makes sense, I hope you understand. So before just saying कि ये करो, ये productivity इससे होती है वो होती है, I just wanna say कि it's okay if you tried your best, don't stress out। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, obviously we don't want to fail एंड वी शुडेंट फेल, एटलीस्ट हम इतनी मेहनत कर लें। और अगर आपके पास 2 दिन है तो मतलब कि ये मत कह के चिल हो जाओ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा मैंने नहीं पढ़ना, ये मत कहो, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू पास द एग्जाम, इवेंचुअली यू हैव टू स्टडी। लेकिन जब एंड रिजल्ट आ जाए तो फिर मतलब कि काम योर सेल्फ, या फिर आप ये मत सोचो कि नहीं अगर मैं ना हुई क्लियर या मेरे इतने अच्छे इतने मार्क्स ना आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो वी शुडंट हैव दैट डू और डाई सिचुएशन, वी शुड मेक इट फ्लेक्सिबल। हमें सेकेंड ऑप्शन भी कंसिडर करनी चाहिए, हमें वर्स्ट सिनेरियो को भी कंसिडर करके करना चाहिए कि हमें उसमें से वापस कैसे आना है। तो वी शुड, और हमें वी शुड बी ओके विद दैट, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल, और we obviously we should manifest for the best, लेकिन when it comes to exams, और obviously we shouldn't talk negatively कि भाई मैं तो फेल हो जाऊंगी। लेकिन आई डोंट थिंक कि फॉर मी आई वुड नेवर स्टे डिलूजनल, क्योंकि इट्स बेटर कि आप एक्सपेक्ट कम मार्क्स कर रहे हो और आपके ज़्यादा आ जाएंगे, इट्स बेटर देन टू थिंक कि ओ मेरे ज़्यादा आने थे और आपके कम आ जाए। हाँ बाकी हर चीज़ में वील मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी सब कुछ, लेकिन इसमें I can't manifest to get 90 marks if I have given a paper of 70% or 60% marks. Okay, all right, let's
move into the real like tips that I think would help you be productive with your studies. Okay, let's start from the start. Let's just forget everything. You're in stress night right now. You don't know what to do, where to do, what kya karna hai, kya. So let's just start from the start. Okay. First of all, before planning to study, before thinking about, nahi, not before thinking about, after thinking about that you need to study, but before doing anything, first you have to make a plan. First you have to make a rough plan. I'm not saying कि पूरा एक पूरा journal create करो. Make a rough plan, maybe in your head, maybe in your mobile notes, maybe on the back of your register, maybe on the back of your book, maybe on the sticky note, maybe on anything. Okay, make a rough plan. कितने subjects हैं, किसका किस दिन पेपर है, या पढ़ना है ऑब्वियसली, अगर एक महीने बाद, 2 महीने बाद, या अगर वैसे ही पढ़ना है तो यू शुड हैव अ प्लान. इफ अगर आपने वैसे ही पढ़ना है ना, और डे टू डे पढ़ना है, तो आई वुड रियली 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 रिकमेंड. और मुझे पता है, मुझे भी बचपन में मेरे घर वाले बोलते थे और मुझे बहुत अनॉय करती थी ये चीज़, लेकिन रोज़ का रोज़ पढ़ना, इवन वीकली, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपके हफ्ते में सिर्फ 2 लेक्चर्स होते हैं. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई couldn't understand how important they are in your study unless I was not studying the field that I really like and enjoy and understand एंड इन हैव इंटरेस्ट इन. ओके, लेकिन बेसिकली अगर आप अगले लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर का रिवाइज कर रहे हो ना, तो लाइक यू आर डूइंग द मोस्ट. आप प्रिपेयर्ड हो. आप अगर आपका कोई क्विज हो जाता है सरप्राइज, आप उसके लिए प्रिपेयर हो. एंड इट टेक्स लाइक, इफ यू आर मेकिंग नोट्स, अगर आपने उस लेक्चर के नोट्स हैं आपके पास, तो इट टेक्स 5 मिनट्स. वरना आप जब वो चीज़ 4 हफ्ते बाद खोलते हो, 5 हफ्ते बाद जब एग्जाम्स होते खोलते हो ना, आपको बिल्कुल पता नहीं लगता. तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू द टॉपिक राइट आफ्टर, और मे बी अ डे बिफोर, और मे बी अ वीक आफ्टर टू एग्जाम, ताकि आपके जहन में आपको पता लग जाए कि ओ दिस इज़ व्हाट यू स्टडीड. वरना जब आप वो चीज़ बस उस टाइम नोट्स करके या बुक में हाईलाइट करके बंद कर देते हो, और फिर आप एग्जाम के टाइम खोलते हो, तो आपको कुछ भी नहीं याद रहता. आपको एक लफ्ज़ नहीं याद रहता, आपको ये भी नहीं याद रहता कि मैंने ये पढ़ा भी है कि नहीं. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जो आप लेक्चर ले रहे हो, जब कोई यूट्यूब पे ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, आफ्टर अ वाइल गो थ्रू दैट. आपने जो भी पर लिखा है, जो भी नोट्स अपने बनाए हैं, कुछ हाईलाइट किया है, कुछ अंडरलाइन किया है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू दैट मे बी आफ्टर 2 days, और मे बी ऑन द सेम डे, और मे बी अ लेक्चर बिफोर दैट, ताकि आपके जहन में इट्स लाइक रीअश्योरिंग एंड देन इट स्टेज इन योर माइंड. इट डज, इट हेल्प्स. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एवरी सिंगल डे. लेकिन बेसिकली यू नीड टू हैव अ प्लान. यू नीड टू नो कि ओ, अगर आप बिल्कुल ही सर्वाइवल मोड में हो और क्राइसिस में हो, जो कि मैं होती थी, तो बेसिकली मैं वो देखती थी उसका पैटर्न, जिसमें मुझे पता होता था कि ओ किस चैप्टर के क्वेश्चंस वुड कम इन पेयर और किन किन में चॉइस होगी, ताकि मैं वो चैप्टर्स करूं जो जिनकी पेयरिंग है, जिनके मैंने क्वेश्चन साथ लिखने हैं, ताकि और मैं वो चॉइस पे छोड़ दूँ. ठीक है, तो यू शुड हैव अ प्लान. यू शुड हैव अ प्लान कि मुझे मेहनत किस में ज़्यादा करनी है, मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा पे मेहनत करनी है, या मुझे मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे बायोलॉजी में, मुझे इंग्लिश उर्दू में. तो आई गेस के एवरी वन इज़ लाइक कि ये तो हलवा है. लेकिन बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, या जो भी आपका सब्जेक्ट जिसको आपको लगता है मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, यू शुड हैव अ प्लान. यू शुड हैव अ प्लान कि ओ मेरे चैप्टर्स कितने हैं, ओ इनमें से कोई टॉपिक जो नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से बाद में बंदा देख लेता है चैप्टर के हिसाब से, लेकिन मैंने ये चैप्टर करने हैं, ये चैप्टर मुझे ऑलरेडी आते हैं, ये चैप्टर मुझे अभी करने हैं, नए इस तरह से प्रिपेयर करने हैं. और मतलब कि यू शुड हैव अ प्लान, और यू शुड हैव अ रफ प्लान कि मुझे ये करना है. स्पेशली अगर आप रोज़ का रोज़ पढ़ रहे हो, और ऑब्वियसली सब रोज़ का रोज़ ही पढ़ते हैं, दैट्स अ डम सेंटेंस, लेकिन खैर जब भी आप कर रहे हो, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आपने जो अगले दिन पढ़ना है, उसका आप एक दिन पहले रात को उसका आप एक प्लान बना लो कि कल का दिन मैंने उठ के ये पढ़ना है. वरना इट टेक्स सो लॉन्ग टू फिगर आउट कि व्हाट आई वांट टू डू, एंड इट्स अ रियल थिंग. मैं घंटा बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, बुक देखती रहती कि ओ आज कौन सा सब्जेक्ट पढूं, अब मैं इस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करूं. फिर मैं दोबारा की खोल के देखती थी कि ओ मैंने मुझे ये करना चाहिए, ओ मैं इसका कौन सा क्वेश्चन करूं.
तो एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए एक दिन पहले कि कल मैंने उठना है, तो मैंने ये कोर्स, मैंने ये जो भी सब्जेक्ट करना है और मैंने इसका ये चैप्टर करना है, ओके। आपका इट वुड, मतलब कि इतना टाइम आपका बचेगा ना। आई डोंट नो व्हाट आई वाज अबाउट टू से इट वुड वेस्ट सो मच टाइम, नो इट वुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब आप सुबह सुबह उठते हो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, और तब आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर सकते हो, तब आप सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो अगर आप वो टाइम वेस्ट कर दोगे ये सोचने में कि ओ मुझे करना क्या है, तो फिर तो आप गए। और इट्स नॉट दैट हार्ड, इतनी हार्ड एक्टिविटी नहीं है कि आप सोचो कि ओ मैंने अगले दिन के लिए क्या करना है। सो यू कैन डू इट एट नाइट व्हेन यू आर टायर्ड, यू कैन डू इट इन योर बेड टू, अगर आपके पास अपना सारा सिलेबस आपके मोबाइल में है या कुछ भी है। तो इट्स अ easy thing and I would really recommend you to have your प्लान अ डे बिफोर कि अगले दिन मैंने ये करना है, जब मैं सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग फ्रेश है तो मैंने ये सब्जेक्ट करना है, उसके बाद मुझे रिलैक्स होना है तो मुझे ये सब्जेक्ट करना है, और उसके बाद शायद जो मुझे ऑलरेडी आता है वो मैं रिवाइज कर लूँगी। ओके, गुड गुची। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जस्ट आप उठे हो ना, आप बैठे हो और आप सोच रहे हो, आपके पास आपका मोबाइल है, आप मोबाइल पे अपनी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, आपको मैसेज आई जा रहे हैं, तो और आप कह रहे हो कि देर इज़ अ वेरी फेमस मीम के बंदा जो है, ये मैंने अपनी पहली एपिसोड में बाय द वे बात की थी, कि बंदा सोचता है कि ओ मैंने 12 बजे पढ़ना है और 12 बज के 5 मिनट हो जाते हैं, तो फिर बंदा कहता है कि अब मैं 1 बजे पढ़ूंगी। डू नॉट डू दैट, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, जस्ट स्टार्ट इट। मैंने ना, मुझे नहीं पता कि इन व्हाट बुक दिस रूल इज, बट देयर इज दिस 3 सेकेंड रूल और 5 सेकेंड रूल, एंड बेसिकली यू आर लाइक 1 2 3 4 5 मोबाइल रख दिया और आई वुड स्टडी, आई वुड फोकस। और आपको ऐसे करना पड़ता है, आपको नो वन वुड कम एंड टेल यू कि यार पढ़ो, और किसी के ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल वुड कम एंड टेल, लेकिन आपको उनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका खुद दिल नहीं चाहेगा कि आप पढ़ो। सो इस वजह से दिस इज़ ऑन यू, दिस यू शुड डू। अपने आप को झंझोड़ो, अपना मोबाइल बेशक बैटरी निकाल के उसको फेंक दो ताकि उसको देख ना पाओ, कि और मे बी यूज़ अ लैपटॉप इफ़ यू हैव अ लैपटॉप। ऑब्वियसली एवरीवन डू नॉट हैव एन एक्सेस टू लैपटॉप, मेरा पर्सनली मेरे पास नहीं था। जो भी करना है, मतलब कि इफ़ यू हैव अ लैपटॉप आई वुड रियली रिकमेंड कि अपने सारे जो स्टडी मटेरियल है वो लैपटॉप में रखें, मोबाइल ताकि कम अज़ कम यूज़ करें। ऑब्वियसली यू कैन स्टिल ओपन ट्विटर ऑन वेब ऑन दैट, बट इट वुडेंट बी दैट फन, वो आप उस तरह इजीली कंफर्टेबली स्क्रॉल नहीं कर सकते, और ना ही उसमें आप ट्वीट कर सकते हो कुछ, क्योंकि मोबाइल पे टाइप करना बहुत आसान है, कीपैड पे टाइप करना इतना आसान नहीं है, तो यू वुड बी डन। तो इस वजह से आई थिंक लैपटॉप इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ़ ऑब्वियसली यू हैव अ लैपटॉप। इफ़ यू डोंट हैव अ लैपटॉप तो फिर मोबाइल की बाकी सारी ऐप्स डिलीट कर दो। आई वुड से दैट डिलीट इट। आप नहीं कह सकते, रेजिस्ट कर सकते उसको ना खोलने से, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग एन नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। व्हाट्सएप इज़ द ओनली ऐप यू माइट नीड, क्योंकि यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, या आपको पूछना पड़ता है। उसमें भी बात अगर मतलब कि इधर से उधर हो जाए तो ऑब्वियसली यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन इंस्टाग्राम और ट्विटर और पिंटरेस्ट, नॉट पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट मासूम सी ऐप है, उसने क्या किया, पिंटरेस्ट नहीं, फेसबुक इफ़ यू यूज़ इट, और जो भी ऐप जिससे आप सबसे ज़्यादा टाइम करते हो ना, उसको बस अनइंस्टॉल कर दो, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया कहीं की कहीं नहीं जाएगी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और येस यू हैव दिस हैबिट टू चेक योर मोबाइल एज सुन एज यू वेक अप, लेकिन अगर आप 2 दिन नहीं करोगे तो यू विल रियलाइज कि यू कैन रियली लिव विदाउट इट। जब मैंने ट्विटर ब्रेक्स ली हुई हैं, और जब भी मैंने ट्विटर ब्रेक्स ली हुई हैं तो एक हफ्ते बाद, क्योंकि अब ट्विटर इज लाइक कि ओ इट्स अ मॉर्निंग न्यूज़पेपर, दिस इज आई एम चेकिंग दैट ऐप एज सून एज आई वेक अप। लेकिन जब मैं 2 दिन नहीं करूँगी या मैं अनइंस्टॉल कर दूंगी ऐप, तो मुझे रियलाइज़ होगा कि यार मैं इसके बगैर भी रह सकती हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट वुड kill the urge to check that social media platform that you are obsessed with every single डे या मॉर्निंग और नाइट या जो भी है, या एवरी सिंगल सेकेंड। जब जब मतलब कि एक बार आप डिलीट कर दोगे, एक दिन बड़ा मुश्किल होगा, 2 दिन बड़े मुश्किल होंगे, स्लोली आपकी वो अंदर ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो इट्स नॉट, तो मैं अपने साथ ज़बरदस्ती करो, डिलीट कर दो। अगर आपको लगता है अगर आप मोबाइल के बगैर गुजारा कर सकते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि मोबाइल उठा के फेंक दो कहीं पे, उसकी बैटरी, मैं पर्सनली व्हाट आई डू इज़ दैट कि मैं अपना मोबाइल ना डेड कर देती हूँ, मैं चार्ज ही नहीं करती।
मैं चार्ज करती ही नहीं हूँ, और फिर मैं मोबाइल को ना दूसरी तरफ रख देती हूँ ताकि बस मुझे पता भी नहीं चले कि मोबाइल एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो दैट्स द थिंग कि जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, अपने आप को उठा के लेके जाओ, यूज द 5 सेकेंड रूल, इट रियली वर्क्स फॉर मी, इट रियली रियली वर्क्स फॉर मी। अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो मैंने टिप है वो मुझे लगता है कि आई हैव डिस्कस्ड दैट बिफोर टू इन द प्रोडक्टिविटी एपिसोड, एंड दैट इज के हैव अ डिफरेंट प्लेस टू स्टडी। you cannot study on the place where you are sleeping or where you are रेस्टिंग, या फिर जहाँ आप, जो आपका कंफर्ट प्लेस है वहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते, आप उस जगह पे बैठ के नहीं पढ़ सकते जहाँ पे आप सो रहे हो, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उस सोने की पोजीशन में आ जाएगी आपकी बॉडी, एंड दैट्स नॉट। और मैं आई वॉन्ट रिकमेंड स्टडिंग ऑन बेड, आई वुड पर्सनली से कि इफ़ यू अगेन इफ़ यू हैव एन एक्सेस टू टेबल, स्टडी टेबल, तो फिर तो दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। आई पर्सनली डिड नॉट हैड अ स्टडी टेबल व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट एरा, तो आई वुड स्टडी ऑन डाइनिंग टेबल। ऑब्वियसली कुछ कुछ लोगों का डाइनिंग टेबल जो है वो उनके टीवी लाउंज में होता है जहाँ पे सारे रौनक लगी होती है और सारे आ जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। व्हाट माई सिस्टर डज इज दैट कि वो अपना बुक्स वगैरह लेके ड्राइंग रूम में आ जाती है जहाँ पे बैठ के भी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड एज आई एम सेइंग दिस मुझे उसके सामने बुक्स भी नज़र आ रही हैं फैली हुई। तो वो बेसिकली आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जगह जहाँ पे आपने पढ़ना है उसको सेपरेट रखो उस जगह से जहाँ पे आपने, आप रेस्ट करते हो, सोते हो, आप कंफर्टेबल है जो आपके लिए जगह। क्योंकि मतलब आप नहीं, आई डोंट नो, आई कैन टेल द साइकी बिहाइंड इट, लेकिन वो बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि आई कैन एक्सप्लेन इट, बट इट वर्क्स, इट इज़ अ रियल थिंग। और जब आप, स्पेशली इफ़ यू, अगर आपकी बुक टेबल पे है और आप खुद एक सीट पे बैठे हो एंड देयर इज़ लाइक अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द डेस्क एंड यू, और आपने अपनी गोद में किताब नहीं रखी हुई, तो इट वुड बी मच मोर, आई थिंक, prop मतलब कि it would be much more appealing, I don't know, it would be much more easier for your brain to grasp it, it would be much more easier to write things down, it would be much more easier to read it, and because you're in that position जहाँ पे आपके लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल है करना। बेड पे पढ़ना इज़ नॉट कंफर्टेबल, डोंट डू इट, सेपरेट योर प्लेस फ्रॉम द प्लेस यू रेस्ट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट चेंजेस योर माइंड सेट। सीरियसली दिमाग पे भी असर पड़ता है। अगर आप अपने बेड पे हो तो आप थोड़ा थोड़ा सोने के बारे में सोचने लगते हो, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन वेयर यू आर प्रॉपर, आपकी बैक पूरी तरह जो है वो सीधी है, आप खुद सीधे हो, आपकी बुक जो है वो एक सर्टेन पोजीशन पे पड़ी है, आपकी गोद में नहीं पड़ी, आपको बार बार हिलना नहीं पड़ रहा, आपको बार बार टांगे ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ रही। तो मुझे लगता है कि इट रियली वर्क्स विद, मतलब कि इट रियली डू समथिंग यू ब्रेन टू, लाइक यू कैन स्टडी बेटर on a desk or on a dining table or a separate place. Some people love studying on ground क्योंकि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है बेसिकली। कुछ लोगों को चल के ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, कुछ लोग अब खड़े होकर ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कि वो अपनी बुक किसी टेबल पे रख दें और खुद खड़े हो जाएं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक इट, लेकिन यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू हैव अ सेपरेट प्लेस ताकि इवन, क्योंकि ना, ओके आपने सपोज 2 घंटे पढ़ा है और उसके बाद आप ब्रेक लेना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू कैन गो बैक टू दैट प्लेस एंड टेक रेस्ट एंड देन गो बैक। लेकिन अगर आप उसी जगह पे बैठे हुए स्टडी कर रहे हो, उसी जगह पे आप सो रहे हो, तो आपके लिए, आप मतलब कि यू कांट बी दैट प्रोडक्टिव, और यू कांट लाइक, आई डोंट नो, यू रियली कांट बी दैट प्रोडक्टिव, आई होप दैट मेक्स सेंस। लेकिन आई एम सेइंग ट्रस्ट मी, ट्राई टू डू दैट, इट वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपने जितना भी, ऑब्वियसली इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितने घंटे और कितना पढ़ना है। मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकती कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। सबके दिमाग अलग होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी कोई चीज़ ग्रास्प कर लेते हैं, उनको, मतलब कि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, लकी देम, कि वो कहते हैं कि ओ मैं एक बार पढ़ता हूँ और मेरे दिमाग में सारा जो है वो छप जाता है और मैं फिर जाके बस पेपर पे वो लिख देता हूँ और मेरे मार्क्स आ जाते हैं, लाइक लकी यू। बट you have to determine that कि how much time you need to study। और मैं पर्सनली एज सच कोई टाइम सेट नहीं करती थी, जब मैं थकती थी तो मैं कहती थी ओके। तो
बेसिकली, लेकिन आपने अपना जो भी गोल रखा हुआ है कि मैंने ये चैप्टर करना है, या मैंने 2 घंटे पढ़ना है, या मैंने 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मेक श्योर यू आर रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, एंड दैट्स रियली मोटिवेट्स यू टू फिनिश दैट होल थिंग टू, और टू स्टे देयर टू. व्हेन आई सेड दिस अर्लियर टू, कि आप अपनी, इन अर्लियर पॉडकास्ट, कि आप अपनी सोशल मीडिया डिलीट कर दो, और आप जो है, अगर आपने चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए और आप बोर हो गए हो, तो मे बी रीड द बुक यू आर रीडिंग, और मे बी वॉच द शो, द सीजन यू आर वॉचिंग, और मे बी गो एंड वॉच अ यूट्यूब वीडियो. मतलब कि जो भी देखना है यूट्यूब वीडियो देख लो. मुझे लगता है कि इट्स मच मोर हेल्दी देन टू स्क्रॉल टिकटॉक और टू स्क्रॉल इंस्टाग्राम रील्स. क्योंकि उस पे आपको आपका 1 घंटा गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं लगता. आप जहन में ये सोचते हो कि वो मैं 5 मिनट के लिए देखना है इंस्टाग्राम, और घंटा गुजर जाता है, आपको पता नहीं लगता. तो इससे बेहतर है कि आप कोई यूट्यूब वीडियो जाके देख लो अपने फेवरेट यूट्यूबर की, या आप जाके अपने सीजन के एक एपिसोड देख लो, या फिर आप जाके एक चैप्टर पढ़ लो अपनी बुक का. क्योंकि वो दैट वुड बी मच मोर रिवॉर्डिंग एंड मच मोर फिलिंग इन एंटरटेनमेंट टर्म्स, कि अगर आपको कोई और एक्टिविटी करनी है, देन टू स्क्रॉल सोशल मीडिया, जो कि आपको और एंग्शियस ही करेगा, और जो विच वुडेंट बी, मतलब कि दैट फीलिंग, और दैट वुडेंट अचीव लाइक एन अचीव, दैट वुडेंट फील लाइक एन अचीवमेंट. और तो इस वजह से डोंट रियली स्क्रॉल, go and watch the season you're watching. Obviously don't binge watch it. एंड अगेन, अगर आप कुछ भी फिक्शन की साथ चीज़ देख रहे हो ना, विच आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि यू शुड बी, लेकिन आई पर्सनली, मैं अब इस स्टेज पे हूँ कि मैं अनहेल्दी ऑब्सेशन मेरी हो ही नहीं सकती एक चीज़ से, कि मैं बैठ के बिंज रीड कर लूँ या बिंज वॉच कर लूँ. मुझे पता है कि मैं एक एपिसोड से ज़्यादा नहीं देख सकती, और मुझे देखना भी नहीं है. मैं एक चैप्टर या 2 चैप्टर से ज़्यादा एक सिटिंग में बैठ के पढ़ भी नहीं सकती, और मुझे नहीं पढ़ना. तो इतना, क्योंकि उसके बाद मेरा अटेंशन स्पैम जो है ना, वो मेरे ख्याल से इतना ही है. तो डोंट डू दैट यू टू योर सेल्फ, इवन इफ यू आर वॉचिंग द क्रेजिएस्ट शो एवर, और जो भी है. ऑब्वियसली सम पीपल डू गिव अप ऑन वॉचिंग सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, लेकिन आई थिंक यू कैन स्टिल वॉच, बट यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, कि मैंने एक ही एपिसोड देखनी है, ये मेरा ब्रेक है, और मैंने रात को देखनी है, जो भी है मैंने एक ही एपिसोड देखनी है. क्योंकि इस तरह तो आपकी लाइफ बहुत ड्राई हो जाएगी ना, सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे. एंड देन अगेन आई सेड कि it's so much better to give up on Instagram than to give up on Netflix. In my opinion, क्योंकि I think you waste more time on Instagram. So that's that. The next tip. Why I'm saying topic? Study productivity है ना, शायद इसलिए मुंह से topic निकल रहा है. The next, I would say कि a lot of people would not agree with that, and you have all the right to disagree with that, and there's a high chance कि this doesn't work for you. But I think studying in morning, early morning, मतलब कि after 6 a.m., after the sun rises, या फजर के बाद, आई थिंक कि स्टडिंग इन मॉर्निंग is better than studying in afternoon or evening. I won't argue on studying at late night. I basically think कि उस टाइम पढ़ना जब कोई और इंसान जागा हुआ नहीं है, या कुछ कर नहीं रहा, आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आपके जो है वो डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, योर माइंड इज़ एट पीस. कुछ लोगों का सुबह माइंड ज़्यादा पीस में होता है, कुछ लोगों का रात को ज़्यादा होता है. तो बेसिकली आई थिंक, लेकिन बात ये है कि सुबह आपका जहन फ्रेश होता है, यू आर रेडी टू ग्रैस्प कॉन्सेप्ट, यू आर रेडी टू लर्न मोर. रात के टाइम आपने पूरा दिन स्पेंड किया होता है, या अनलेस आपकी स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ही ख़राब हो और आप जो है वो इवनिंग में उठ रहे हो, ठीक है, या फिर आफ्टरनून में. नो, इजंट आफ्टरनून, डजंट आफ्टरनून कम बिफोर इवनिंग? आई डोंट नो, मतलब कि शाम को आप बेशक मे बी आप शाम को उठ रहे हो तो आपके लिए रात का टाइम ज़्यादा सही है. लेकिन आई फील कि अगर जिस वक्त आप उठते हो ना, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर सकते हो. तो बेबी बी इट अर्ली मॉर्निंग और बी इट लेट एट नाइट, और जब आपको लगे कि सबसे ज़्यादा पीसफुल है, और इस टाइम मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी मेजर चीज़ें जो हैं वो उस टाइम के लिए रखो. क्योंकि वैसे ही आजकल गर्मियाँ हैं, तो आफ्टरनून और इवनिंग में पढ़ना जो है वो इट माइट बी क्योटिक, स्पेशली 12 12 PM से लेकर 4 PM के बीच में टाइम बहुत, मतलब कि
अजीब होता है और बहुत गर्मी लगती है। तो आई डोंट नो, आई वुड रिकमेंड कि आप जो है अपना टाइम या तो सुबह सुबह का रखो जब कोई नहीं जागा हुआ, एंड आई वुड रिकमेंड कि सुबह सुबह पढ़ो क्योंकि आई थिंक योर माइंड इज सो फ्रेश दैट टाइम। लेकिन इफ समहाउ यू कैन नॉट डू इट, यू हेट मॉर्निंग एंड यू स्टडी मोर प्रोडक्टिवली एट द नाइट, तो फिर नाइट में करो। लेकिन डू इट व्हेन एवरीवन एल्स इज स्लीपिंग, व्हेन देयर इज पीस अराउंड यू, व्हेन यू फील मेंटल पीस, व्हेन यू फील मेंटल पीस। तो मे बी स्टडी एट दैट टाइम, क्योंकि इट डज मतलब कि इफेक्ट्स, इट डज इफेक्ट। और आजकल वैसे ही गर्मी है एंड दैट टाइम ऑफ द डे इट्स नॉट दैट warm, it's not that hot, तो मतलब कि it's bearable that time। तो do study at that time, I think that उस टाइम आपका माइंड, इवन इफ यूर नाइट आउल, आई थिंक उस वक्त आपका दिमाग जो है वो इट्स एक्सेप्टिंग थिंग, इट्स एक्सेप्टिंग आइडियाज, इट्स लेटिंग यू लर्न थिंग्स मोर। तो इस वजह से आई थिंक कि जैसा इफ़ यूर मॉर्निंग पर्सन डू इट एट अर्ली मॉर्निंग 6 a.m., और इफ़ यूर नाइट पर्सन डू इट एट नाइट मे बी आफ्टर 11 or 10 a.m., जैसे आपको बेहतर लगता है। लेकिन डू स्टडी एट दैट टाइम व्हेन देयर इज पीस एंड देयर इज नो अदर ह्यूमन बीइंग वैंडरिंग अराउंड, या अगर है तो सारे अपने काम से काम रख दें। या और वैसे ही जो मुझे लगता है कि जो इन बिटवीन टाइम होता है ना 12 से लेकर 7-8 बजे तक, वो बहुत chaotic होता है। एंड देयर इज नो वे, ऑब्वियसली देयर इज अ वे, और पीपल डू कि आप अपने कमरे में बंद रहो और पढ़ते रहो। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे कि आप लगातार पढ़ते रहो और फिर आप ब्रेक लो, खाना खाओ, कर लो विदाउट एनी अदर थिंग कमिंग अप के ओ ये कर दो वो कर दो। दरवाजे पे कोई आया है दरवाज़ा खोल दो, दैट्स ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, राइट? या कोई घर पे आया है या कोई फैमिली मेम्बर ही कोई वापस आया है, या आप खाना खाना है या खाना लगा दो, बर्तन धो दो। तो ये सारी चीज़ें जो है आई थिंक दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू रियली। और फिर आपने कपड़े चेंज करने होते हैं, शावर लेना होता है, वो सब कुछ। तो मुझे लगता है देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग इन द डे टाइम दैट माइट डिस्ट्रैक्ट यू, या जो यू हैव टू डू, आई एम नॉट सेइंग कि नॉट डू इट। तो इस वजह से आई थिंक कि वो टाइम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू नो कि किसी को कुछ नहीं चाहिए मेरे से, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद अपने आप को प्रोवाइड कर लूँगी, और आई डोंट नीड अ लॉट। तो आई थिंक कि स्टडी इन अर्ली इन द मॉर्निंग और मे बी स्टडी एट द नाइट, लेकिन स्टडी व्हेन योर माइंड इज़ एट पीस and there's no distraction, no chaos. Now, the next tips that I'm about to tell you guys are like game changer, life changing tips that actually work, tried and tested. I have done it. You should do it if you're not already. Or these are really little, like you already know them, but maybe ज़हन में ना आया हो, but write it down, take notes, okay? So the first tip, important tip is that make notes। और मैं अभी हंसी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कहा take notes, और the tip is that to make notes, it is game changer। लिखो साथ साथ, whatever you are memorizing, whatever you are studying, please write it down। if you are in the lecture, please write it down. It is the best thing you can do for yourself to help yourself in studies। प्लीज नोट इट डाउन। ये मत सोचो कि ओ मैं बैठ के लेक्चर सुनती हूँ, ऑब्वियसली कभी कभी इंसान का नहीं दिल चाहता, लेकिन व्हेन आई टेल यू इन यूनिवर्सिटी आई वुड ड्रैग माई सेल्फ टू स्टे सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, द फर्स्ट लाइन, एंड टू हैव माई लेक्चर नोट्स एंड माई पेन, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने ये लेक्चर हो जाना है और उसके बाद जब मुझे रिवाइज करना है तो मुझे सबसे मांगना पड़ेगा, और मुझे मतलब कि नहीं, आई वॉन्ट टू नोट डाउन माई ओन लेक्चर, क्योंकि जो चीज़ जो टीचर बता रहा है, जो मैं फर्स्ट हैंड जो मैं चीज़ अपने कानों से और अपनी आंखों से सुन के देख के लिख रही हूँ, वो किसी और के नोट्स में ना मुझे मिलेगी। अगर मुझे मिल गई तो मुझे समझ नहीं आएगी, आपको किसी और के नोट्स की नहीं समझ नहीं आएगी, अनलेस कि वो इंसान आपको खुद समझाए। जब वो इंसान आपको खुद समझा रहा है तो वो आपको वो चीज़ नहीं बता रहा जो वो टीचर बता रहा है, उसकी वो रिफाइंड फॉर्म होगी, नॉट रिफाइंड, लेकिन उसमें शायद कुछ बातें मिस हो जाए। इस वजह से जब आपका टीचर वो चीज़ पढ़ा रहा है, पहली सिफ्थ में बैठे, सिफ्थ पहली बेंच में बैठे और नोटेड डाउन। स्कूल में मैं हमेशा बैक बेंचर थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं सबसे आगे होती थी। तो इसलिए इवन इन स्कूल आई वोंट, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने स्कूल में गलती की है लेकिन मुझे करनी चाहिए थी। सिट ऑन द फ्रंट,
ऑब्वियसली आपके पास बहुत मौके आएंगे जिनमें आप बैक पे बैठ के जो है वो शुगर लगा सकते हो, लेकिन अगर आप, और आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट एकेडमी, एकेडमी में स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, तो मुझे पता है कि लड़कियों को बेसिकली शायद पीछे बिठा देते हैं, आपको नज़र भी नहीं सही तरह आता। आई डोंट नो अबाउट एकेडमी, बट इन स्कूल और कुछ कुछ लोगों की रोटेशन भी होती है बाय द वे, लेकिन अगर कोई बहुत बच्चे खुशी खुशी आपको अपनी फर्स्ट सीट देने के लिए तैयार होंगे, तो इफ़ यू कैन तो सिट इन द फर्स्ट और सेकंड सीट, और आप जो भी टीचर कह रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। एक तो इससे आप अटेंटिव भी रहोगे लेक्चर में, ओके। और सेकेंडली आप जो है वो सब कुछ लिखोगे, तो जब आप, और मैंने ये बात पहले भी की थी, तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे और आप अपनी हैंड राइटिंग में वो चीज़ देखोगे लिखी हुई, तो आपको वो सब कुछ याद आ जाएगा जो टीचर ने कहा था, ओके। और सेकेंडली अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट की, किसी एग्ज़ाम की, या किसी भी टॉपिक की, और आप उसको मेमोराइज कर रहे हो, तो मेमोराइज इट बाय राइटिंग इट डाउन, बाय राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डाउन। उससे आपको ज़्यादा जल्दी याद भी होगा और उससे आपके जहन में ज़्यादा भी बैठा रहेगा, क्योंकि देन वेन एवर यू विल ट्राई टू रिमेंबर दैट टॉपिक, यू विल गेट दैट इमेज ऑफ दैट पेज जिस पे आपने वो सब कुछ लिखा था इन योर हेड, कि ओ मैंने ये चीज़ इसमें लिखी थी, आपके जहन में ना एकदम से उसका इमेज आएगा और वो आपको वो चीज़ याद दिलाएगा। इट हैपन्स, इट वर्क्स। मे बी मेरे बात की सेंस ना बड़ी हो, बट दोज हु नो। सो वन एवर यू आर रिवाइजिंग समथिंग, नॉट रिविजन में मुझे लगता है कि इट्स ओके, लेकिन वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, फॉर अ टॉपिक, और आप किसी टॉपिक को पहली बार खुद प्रिपेयर कर रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, नई नोट्स बने हुए, तो प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट। डू योर सेल्फ अ फेवर और उसके नोट्स बनाओ। जब आप दूसरी बार वो टॉपिक पढ़ोगे ना अपने नोट्स से, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने हाथ से वो चीज़ लिखी होगी, ओके। तो डू मेक नोट्स। आई, और मैं अभी आई एम वेरी हाई ऑन नोट्स। अब तो मेरी जो चीज़ मेरे जहन में आती है मैं उसका नोट लिख लेती हूँ, मतलब कि कोई भी चीज़ आए मैं उसको लिख लेती हूँ अपनी, मतलब कि आई हैव बिकम अ जर्नल गर्ल। और मैंने इसकी पोस्ट भी डाली थी, विच यू हैवंट लाइक, गो लाइक माई रिसेंट पोस्ट, क्योंकि अब मैंने एक और पिक्चर पोस्ट कर दी होगी, तो या, लेकिन मेक नोट्स ऑफ योर स्टडी लेक्चर। trust me, it would improve your memorizing strategy or whatever, लेकिन it would do things। और अगर आप पहले नोट कर रहे हो, तो जब आप रिवाइज करने लगोगे या आप जब वो टॉपिक खोलोगे, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ इस टीचर ने ये बोला था। तो यस, मेक नोट्स, ओके। अपना रजिस्टर लेके बैठे और जो बस टीचर बोल रहा है वो लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए। ट्रस्ट मी, इट वुड हेल्प। और मैं अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, तो लेट मी जंप इनटू द नेक्स्ट टिप, एंड दैट इज़ कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं पता, नहीं आता, कुछ नहीं समझ आया जो टीचर ने बोला है, पहली बार आप वो टॉपिक खोल के देख रहे हैं, तो गो एंड वॉच यूट्यूब लेक्चर्स। और जब आप यूट्यूब लेक्चर भी आप देख रहे हो, तो मेक नोट्स वट एवर दैट प्रोफेसर इज सेइंग, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू have more understanding with the YouTube lecture teacher than their own teacher, which is completely fine. I know they are much more better। और अगर आप किसी, और ऑब्वियसली आप रिवाइंड कर सकते हो, फिर से सुन सकते हो, तो अगर आप यूट्यूब पे भी लेक्चर ले रहे हो तो प्लीज़ टेक नोट्स। और अगर आपको बिल्कुल ही किसी लेक्चर का अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो उस पर रट्टा लगाने से बेहतर है कि जाके आप उसका यूट्यूब लेक्चर देखो। रट्टा, आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव अ सक्सेसफुल रट्टा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स रियली नॉट दैट यूजफुल। क्योंकि जब आपने एंड गोल, हमारा क्या है, एंड गोल हमारा यही है ना कि वी नीड टू हैव अ गुड जॉब। ठीक है, एंड गोल तो हमारा यही है ना कि हमें जॉब लेनी है, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है या अच्छे कॉलेज में क्यों जाना है, ताकि हमारे एंड पे आके हमारी डिग्री अच्छी हो और हमें जॉब अच्छी लेनी है। और जब आप उस जॉब में जाओगे तो आपका रट्टा बिल्कुल कोई काम नहीं आएगा। यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ क्या है और कैसे हुई है, ओके। तो इस वजह से आप जब भी, आपको किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, तो गो ऑन यूट्यूब, और उसके उर्दू लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे और इंग्लिश लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। और जो आपको लगे कि ओ ये मुझे ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड, मैं इससे ज़्यादा अच्छा करती हूँ, उनका करें, नोट इट डाउन। और या हैव फन, नॉट फन, लेकिन या टेक यूट्यूब लेक्चर्स, डू टेक यूट्यूब लेक्चर्स। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे यूट्यूब लेक्चर्स नहीं लिए था, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट टू माई सेल्फ। मैं एक एक टॉपिक जिसकी मुझे बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं बैठ के उसको हिफ्स करने की कोशिश करती थी, और मैं जाके यूट्यूब लेक्चर नहीं लेती थी।
दैट इज सो स्टूपिड। गो टेक अ यूट्यूब लेक्चर दो, उसमें इंपॉर्टेंट बात है उसको उसको नोट डाउन करें, उसको याद करें और फिर उसको लिख दें। यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आप खुद से लिख सकते हो। a lot of people do say कि वो वर्ड टू वर्ड चेक करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आपका, मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इफ़ यू कैन डिफाइन अ थिंग, व्हाई वुड दे कट मार्क्स? आई थिंक यू शुड डिफाइन, और स्पेशली इन साइंटिफिक टर्म्स तो इतनी ज़्यादा कोई होती भी नहीं है कि आप बहुत ही बोंगियाँ छोड़ दो या गलत बात करो। अगर आपने सही बात की है तो उसके मार्क्स मिलेंगे। आई डोंट थिंक दैट दे वुड कट मार्क्स if it isn't word to word. You just need to have a proper sentence, or for that you need to have an understanding of what that thing is. Next, अब this is the best tip I'm giving. This works for me. This is my favorite tip. This is मेरी कामयाबी का राज। अगर मेरे यूनिवर्सिटी में मार्क्स आए हैं तो मेरे इसी वजह से आए हैं। मैं हर किसी को ये बताती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट टिप आई कुड एवर गिव। और ये मैं दोबारा बात बोल चुकी हूँ, लेकिन दिस वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी। इट वर्क्स फॉर मी। इट हैव मतलब कि मेरे जो भी मार्क्स हैं ना वो इसी में से हैं। टीच टू अदर पीपल। ओके। बात ये, जब मैं यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली मैट्रिक एफएससी में तो मेरे हालात ही नहीं थे कि मैं किसी और को टीच कर सकूं, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी बेसिकली, तो मुझे एक टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और किसी को नहीं है, और वो मुझे कहता है कि समझा दो। लॉट ऑफ पीपल रन फ्रॉम दैट कि मैं क्यों समझाऊं, मैं मेरा मतलब कि दे आर यूजिंग मी ये। लेकिन ट्रस्ट मी, आपका एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक पक्का हो जाएगा अगर आप वो किसी दूसरे इंसान को समझा दोगे, सीरियसली। और मेरे तो मार्क्स ही इस तरह, मेरे तो कॉन्सेप्ट ही इस तरह क्लियर हुए हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ पढ़ती थी, एक या एक सब्जेक्ट स्पेशली जिनमें मेरे चौका आता था। चौका इज़ फोर तो जो सब्जेक्ट में बहुत मैं अच्छी थी ना, उसमें बेसिकली ये था कि एक टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है ना, तो अगले हफ्ते मुझसे इतने ज़्यादा लोग आएंगे एक एक करके पूछने कि हाँ इस टॉपिक में क्या था। और मैं दोबारा दोबारा उनको बोली जा रही हूँ कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, कि वो चीज़ मुझे खुद मेरे जहन में उतर गई है, बस लिख दी गई है मेरे जहन में। और कोई भी, आप जितनी भी बार अब मुंह में बोल लो वो चीज़, आप जितनी भी बार जो है वो कहीं पे लिख लो, लेकिन जितनी अच्छी समझ, जितना अच्छा आप को समझ किसी दूसरे को वो टॉपिक समझा के आ सकती है ना, वो किसी को भी नहीं आ सकती, क्योंकि उस इंसान को ना आप चीज़ वो पहली बार बता रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ना, इट्स लाइक कि आप खुद भी वो टॉपिक, ऑनेस्टली फॉर मी दिस वाज मतलब कि दिस वाज रियली अ थिंग। मैं एक टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ती थी व्हेन आई नो कि यार ये टॉपिक जाके मैंने दूसरों को भी समझाना है। और जब, क्योंकि आई एम अकाउंटेबल, मुझे जाके समझाना है, मुझे है कि यार मेरी इज्जत रह जाए, तो जब मुझे पता होता था ना कि यार मुझे ये टॉपिक किसी और को जाके समझाने में ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करती थी वो, एज़ कम्पेयर टू दोज टॉपिक जो मुझे पता है कि वो मेरे पास ही रहेगा, किसी ने नहीं पूछना इस बारे में, या वो सब्जेक्ट। तो इस वजह से जिस टॉपिक को आप बार बार लोगों को समझा रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट शाई अवे फ्रॉम टीचिंग अदर पीपल। वो लिटरली आपको दुआएं देंगे। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि देर इज़ ऑलवेज अ बाउंड्री, लेकिन अगर आपसे कोई आ रहा है मदद लेने, और अगर कोई नहीं भी आ रहा, तो बी देयर टू हेल्प अदर पीपल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन यूनिवर्सिटी जिनको चाहिए होती है, जो जिन्होंने एक क्लास भी नहीं ली होती और पेपर में आके उनको एक आइडिया भी नहीं होता। टीच अदर पीपल, सीरियसली इट वुड हेल्प यू, इट हेल्प मी। मैंने एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट इतनी बार लोगों को बताया हुआ है ना, कि पेपर में जब वो आया है तो मुझे वो चीज़ हिफ्स थी। और इवन दो अगर वो टॉपिक या वो क्वेश्चन, स्पेशली इन अकाउंटिंग ऑब्वियसली अगर टर्म डिफरेंट हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ये था और मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद था कि इसमें ये चीज़ आनी है, कि मैं वो लिख लेती थी। तो इस वजह से आई वुड रियली 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 रिकमेंड यू ऑल कि अगर आपके आसपास दोस्त वगैरह हैं तो उनको ज़रूर समझाएं, ठीक है ना। उससे सबसे पहले तो ये है कि आप खुद वो चीज़ इतने अच्छे से करोगे ना, क्योंकि आपको पता होगा कि ओ आई एम हेल्ड अकाउंटेबल, मुझे ये चीज़ समझानी है। जब वो पता है क्या होता है, जब आप एक चीज़ खुद बैठ के पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर सेल्फ स्टडिंग, तो आप वो चीज़ कर लेते हो, आप कहते हो अच्छा ठीक है मेरे जहन में, आप ठीक है, आप कहते हो कि नहीं ठीक है, क्योंकि क्या मैं कह रही हूँ, खैर, आप कहते हो कि ओ आई एम डन विद दिस, क्योंकि आपको पता है कि ओ मैंने किसी को जाके सुनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मैं खुद आई एम इन चार्ज ऑफ माई सेल्फ। तो जब आपको पता है ना कि ओ मुझे जाके किसी को सुनाना है या मुझे बताना है किसी को, मुझे किसी को समझानी है ये चीज़,
तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से करते हो। इवन तब आप फिर बुक से देख के भी समझा रहे हो ना, आपको खुद समझ आ जाती है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू टेल समवन एल्स दैट, तो दैट्स अ रियली गुड वे। और इससे आपको फील भी नहीं होता, इट्स अ वेरी फन वे, क्योंकि बेसिकली आप समझा दो किसी और को रहे हो, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है। सेकेंडली, तो इस वजह से आई वुड लव टू टीच अदर पीपल। और मैं तो हुई, मेरे तो मैं तो पास ही इस वजह से हुई हूँ। मैं बैठ के सेल्फ स्टडी करने में आई सक, क्योंकि आई प्रोक्रेस्टिनेट अलॉट। लेकिन जब मेरे साथ एक बंदा बैठा है ना, और मेरे मेरे एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मेरे घर कोई मेरा दोस्त ना आया हो कि यार रबिया, हमें इस कोर्स की तैयारी करा दो। और उस कोर्स में हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि मैंने किसी और की तैयारी कराई है। एक तो आपको सवाब मिलता है, ठीक है, ऑब्वियसली आप किसी और की तैयारी करा रहे हो, इट्स वेरी जेन्युइन ऑफ यू। और कुछ लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं कराना। और कभी कभी ऑनेस्टली मैं भी थक जाती थी, मैं कहती थी कि यार यार, लेकिन मैंने ये देखा है और अब आके मुझे रियलाइज़ होता है कि हाउ, मतलब कि हाउ हेल्पफुल इट वॉज फॉर मी, मेरी अपनी ज़ात के लिए। तो इस वजह से मेरा कोई, सिर्फ कोविड के अलावा, क्योंकि कोविड में आई जस्ट गेव अप ऑन स्टडिंग, मैंने कहा मैंने नहीं करना, आई जस्ट, मतलब कि गो विद द फ्लो। लेकिन कोविड के अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जिसमें मेरे पास कोई आया ना हो कि हमें प्लीज़ ये कोर्स करा दो, और मैंने उसको पूरी कोर्स की वो तैयारी कराई हो। तो इट्स, मतलब कि आई थिंक इट्स वेरी गुड टू टीच अदर्स। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप, मतलब कि पढ़ा सको, ऑब्वियसली हर किसी के पास नहीं होता, तो आप ट्राई टू टीच योर सेल्फ, ट्राई टू बी योर ओन टीचर, और अपने आप को खुद समझा रहे हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स। सेकेंडली, आप वट एवर यू मेमोराइज या वट एवर यू लर्न, आप किसी दूसरे को, वो, मतलब कि जिसका उस सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मे बी योर सिस्टर और योर फादर और योर मदर और हु एवर, आप उनको समझा सकते हो, जो मे बी शायद सुन भी ना रहे हो या आपके लिए सुन लें, या फिर मतलब उनको इतना ना हो, तो मतलब कि यू कैन डू दैट, और यू कैन टीच योर सेल्फ, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और यू विल, मतलब कि वो भी सेम इम्पैक्ट होगा। और इट्स, मतलब कि आप जब किसी और को, बस कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर टीचिंग अदर्स, you get much more when you are like just trying to memorize it or trying to get it in your head, तो get it out of yourself, ताकि जब आप वो words बोलोगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे याद रहेंगे। you need to, जो भी आपने किया है ना, आपको वो सब कुछ बोलना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा याद रहे। अगर आप चुप, मैं पर्सनली चुप करके लेक्चर सुन के, चुप करके अपने जहन में बैठ के वो नहीं याद कर सकती, मुझे कहीं पे लिखना है या मुझे कहीं पे बोलना है। मुझे बोलने का ज़्यादा होता है कि ओ आई शुड टीच समवन और टीच माई सेल्फ, या मैं किसी को वो टॉपिक सुना दूँ, क्योंकि इन दैट वे यू आर हेल्ड अकाउंटेबल इन अ वे। और secondly, obviously there is people who think that group study is very good, there are people who think group study isn't good, लेकिन you can be someone जिसको किसी और से समझना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपने दोस्त को कहो कि रीच आउट टू देम एंड आस्क देम कि यार मुझे ये टॉपिक समझा दो। और फिर आई थिंक कि उस दोस्त, अगर आप वो दोस्त हो, तो मेक श्योर कि आप उससे फिर क्विज ले रहे हो कि अच्छा ठीक है, मैंने जो तुम्हें बताया उसमें तुम्हें क्या समझ आई है, मतलब कि बी प्रॉपर टीचर देन, के ताकि वो आपको बता भी सके। लेकिन इफ़ यू आर द स्टूडेंट जो कि जिसको समझना है, और अगर आपको लगता है आपको अपने दोस्त की ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो डू, मतलब कि रीच आउट टू देम और आप उनसे समझें। और इट्स नॉट टाइम, मुझे नहीं लगता ग्रुप स्टडी टाइम ज़ाया है अगर आप तीन या दो डेडिकेटेड लोग आपस में बैठे हुए हो। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्शन होगी और अलग अलग बातें भी होंगी। ऑब्वियसली ग्रुप स्टडी में आप कहीं खोल भी जाते हो, लेकिन और आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात करना शुरू हो जाते हो, लेकिन आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपको किसी और बंदे की ज़्यादा चीज़ समझ आती है, आपको लगता है कि मैं अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकती या मैं अपने आप को ये चीज़ खुद नहीं समझा सकती, आई नीड समवन एल्स टू कम एंड दैट शुड बी माई फ्रेंड, जिससे मेरी फ्रेंडनेस है और वो मुझे अच्छी आराम सिंपल ज़बान में सब कुछ सिखाए और फिर मुझसे सुने, मुझे पढ़ाए। तो आई थिंक के you should reach out to them, and if you're that friend जिसको सारे पूछते हैं, you get annoyed, trust me it would make your तैयारी better, your preparation better, trust me। जब आपको किसी और को करना पड़ेगा और उससे सुनना पड़ेगा कि it really worked for me। Okay, the next is that कि I am seeing this trend on TikTok a lot and I think I personally haven't tried it, लेकिन I think it does help कि ना लोग एक
कैंडल ले लेते हैं, मोमबत्ती, नॉट अ सेंटेड वन, लेकिन जो वो लंबी सी होती है, ठीक है ना, और लोग वो जला देते हैं और वो कहते हैं कि ओ आई विल स्टडी अंटिल ये सारी मेल्ट हो जाएगी। और मैंने वो आई थिंक कि अगर यूर ऑन टिकटॉक और यूर ऑन इंस्टाग्राम तो यू माइट हैव सीन दैट के लोग कैंडल जला लेते हैं और लोग कहते हैं ओके मैंने तब तक पढ़ना है जब तक ये चल रहा है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। इट्स लाइक वो जो वो टाइम वाला नहीं होता, इट्स काइंड लाइक दैट, बट इट्स और कैंडल इज वेरी कामिंग। बर्निंग अ कैंडल से आपको ना, मुझे लगता है कि इट क्रिएट्स अ एटमॉस्फेयर टू, जिसमें यू आर कूजी एंड यू मतलब कि यू फील गुड। और फिर वो अगर आपने गोल सेट किया हुआ है कि वो मुझे तब तक पढ़ना है जब तक ये सारी मेल्ट हो जाएगी, तो आई थिंक दैट वुड कीप यू वर्किंग, क्योंकि आपको पता है कि ओ ये मेल्ट होगी मैंने तभी उठना है, मतलब आई हैव दिस वॉच, मे बी इट्स बेटर देन अ स्टॉप वॉच। कभी कभी ये होता है कि मैनुअल चीज़ें या फिर पुरानी चीज़ें वुड मेक यू मोर प्रोडक्टिव देन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि अलार्म, मुझे मुझे आई थिंक दैट क्योंकि वो फिजिकल चीज़ है, और मोबाइल पे ऑब्वियसली अलार्म बज रहा है, आप उसको डिसमिस कर सकते हो, आप उससे पहले उठ सकते हो, लेकिन वो एक कैंडल है, ठीक है ना। और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, और वो एक फिजिकल चीज़ है तो आपके सामने हर वक्त आपको नज़र भी आ रही है, बट इट्स नॉट दैट डिस्ट्रैक्टिंग कि आप उसको बस देखते ही रहो द वे मोबाइल इज़। तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सेकेंडली, हाँ, मैंने ये शायद पहले बता दी है, लेकिन नहीं, हाँ ये मैंने नहीं बताई। बेसिकली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि, अब मुझे ना उस चीज़ डायग्राम का ना नाम नहीं याद, लेकिन बेसिकली हमने कंप्यूटर में पढ़ी थी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करते थे। आई डोंट नो, फ्लो चार्ट, वॉज इट कॉल्ड फ्लो चार्ट? लेकिन बेसिकली अगर आप ऐसे हो जिसको जो कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे आप कोई भी फिजिक्स की चीज़ कर रहे हो जिसमें आप को पता करना है कि एसी कैसे चलता है या जनरेटर कैसे चलता है, उसकी सारी मशीनरी, आई डोंट नो, आई फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आप ये कर सकते हो कि आप वो वैसा चार्ट बना लो और उसमें आप वो एरोस करके करो, ताकि आपको विजुअली याद रहे, और जब आप लिख रहे हो वो चीज़ एग्जाम में, तो आपको वो एकदम से आपके जहन में वो पूरा पेज आ जाए कि अच्छा पहले ये चीज़ थी, फिर ये चीज़ थी, फिर ये चीज़ थी, और इस तरह आप मतलब कि अलाइन रहो, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। Secondly, I said it, कि write down what you studied. Now this is our last tip. Not last, I think it's last, लेकिन this is our last tip, कि sleep well. Do not deprive, whatever, however it's pronounced, do not deprive yourself from sleep. ऐसे मत सोचो कि मैं 3 घंटे सो के, मतलब कि स्लीप वेल, प्लीज स्लीप वेल। सुबह अगर आपको लगता है कि ओ मुझे, मैं बेसिकली ये करती थी, मैं हमेशा अपने एग्जाम में जल्दी सो जाती थी और मैं जल्दी उठती थी, क्योंकि आई कैन नॉट स्लीप, मैं सोए बगैर कुछ कर ही नहीं सकती, मैं पेपर ही नहीं अच्छा दे सकती। तो अगर, तो अपनी प्लीज़ नींद पूरी करो, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है वो मत पेपर देना, पेपर तो हो जाएंगे, उसके बाद डार्क सर्कल्स रह जाएंगे और वो भी बहुत पेंसफुल होते हैं। और रिमेंबर दैट कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप मैट्रिक एफएससी में हो और या ए लेवल्स ओ लेवल्स में हो, और आप वो फील्ड नहीं इंजॉय करें जो आप कर रहे हो, तो रिमेंबर दैट के यू मतलब कि जो भी अगला स्टेप होगा, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी, डू स्टडी व्हाट यू इंजॉय। और कभी कभी ये होता है कि आपको, जैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पसंद होगी, मैंने तो बस तुक्का लगाया और आई स्टार्टेड इंजॉइंग इट, कि मुझे पता है मैंने यही पढ़ना है, आई स्टार्टेड इंजॉइंग इट, और मुझे अब बहुत पसंद आया, हैव पैशन फॉर इट। तो इस वजह से डू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर स्टडिंग यू आर एक्चुअली इंजॉइंग इट। इफ़ यू आर नॉट इंजॉइंग इट, डोंट बी शाई टू ट्रांसफर योर सेमेस्टर। अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर अपना एक सेमेस्टर बर्बाद कर दो या एक साल बर्बाद कर दो, ठीक है। दूसरा ये है कि मेक वेन एवर यूर स्टडिंग मेक श्योर, और ना अब ये चीज़ मुझे ग्रेजुएट होने के बाद रियलाइज़ होती है, मुझे पहले नहीं होती थी। नाउ आई इंटेंशनली गो एंड सीक नॉलेज, क्योंकि आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट एंड आई वॉन्ट टू कॉन्टीन्यूसली लर्न, क्योंकि जब एक बार आप वेट बहुत करते हो कि यार मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए, बस पढ़ाई ख़त्म हो जाए, बस मेरी जान छूट जाए, एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाए ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ओ मेरी नॉलेज का वो जो सोर्स था ना वो ख़त्म हो गया है। तो फिर आप कॉन्शियस एफर्ट करते हो कि आप वो बुक्स पढ़ो, आप वो पॉडकास्ट सुनो, आप वो वट एवर, आप वो यूट्यूब वीडियो देखो जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, क्योंकि टेल योर सेल्फ कि एजुकेशन इज़ पावर,
you need to be educated, not because you need to have good grades, but because you want to grow personally, you want to have that level of intellect in whatever field you like, कि मुझे उतनी knowledge रखनी है कि whatever field, whatever topic, whatever area that interests me, there's always an area that would interest you. जो भी है मुझे उसके बारे में एक अच्छा इंटेलेक्ट रखना है, ताकि मैं उसके बारे में अच्छी कॉन्वर्सेशन कर सकूं, और अगला बंदा जब मुझसे मेरे उसके बारे में बात करे तो उसको पता हो कि यार शी इज़ डूइंग, मतलब कि ये इस चीज़ के मास्टर्स हैं एंड शी लव्स व्हाट शी इज़ डूइंग, मतलब कि ये मास्टर्स है, that was a bad sentence, मतलब कि she is mastered in what she is studying या what she graduated in. तो knowledge is power, you need to learn, it makes you strong and it gives you so much, और you would maybe not realize it अभी, लेकिन once you graduate और आपको पता लगेगा कि ओ मेरा वो पूरा ख़त्म हो गया, एंड देन यू विल ट्राई, अब क्योंकि नाउ आई ट्राई टू डू एन इंटेंशनल एफर्ट, अब तो मैं साइंस को भी लर्न करना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि आई थिंक आई नीड टू नो अबाउट इट। तो फिर आपको रियलाइज होगा कि देर इज, मतलब कि नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, हैविंग एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, और आपका जो आपको फील्ड पसंद होती है, फिर आपका दिल चाहता है कि मैं उसको एक्सेल करूँ और मुझे उसके बारे में हर चीज़ पता हो और मैं मास्टर हूँ उस चीज़ की, ठीक है। तो इस वजह से डोंट स्ट्रेस आउट, देयर इज़ नेवर अ डू और डाई सिचुएशन, बिल्कुल भी सब कुछ छोड़ के ना बैठ जाओ, ठीक है। वट एवर इज इट इज़, सेट योर गोल एंड एवरी थिंग इज़ ओके। डोंट लुक एट अदर्स कि उनका क्या चॉइस है, उनका ये क्या है, उनका वो क्या है, लुक एट योर सेल्फ। और अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और या यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेक श्योर यू आर स्टडिंग व्हाट यू रियली रियली लाइक। अगर कोई सब्जेक्ट पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा, तो प्लीज़ डोंट स्टडी इट, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग तो डोंट बी शाई टू exchange it. It's not exchange it, मतलब transfer your semester, unless obviously you are in your last semester। अगर आपने last semester तक कर लिया तो I guess आप final semester भी कर सकते हो, और कुछ ना कुछ तो आपको उस subject से प्यार था ना, जो आप last semester तक वो कर रहे हो और पास होते गए हो। तो एक तो मैंने देखा कि बहुत लोग ना अपने जहन पे कर लेते हैं कि ओ मैं मेरा तो दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर मी, आई कांट डू दिस, ये वो। अगर आपने इतना आगे तक चले गए हो तो आप आगे भी कर लोगे, or try to make it fun for yourself, or that's it. I hope you had a great time listening to this. I hope you point noted things down. I would make an Instagram post जो कि मैं इस weekend में भी लगाऊंगी, ताकि जो है वो आप लोग वो देख सको नोट्स, मतलब कि मैंने जो भी पॉइंट बोले हैं ना, उनकी मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाऊंगी। इफ़ यू ऑल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, विच यू शुड, इट्स एट द ब्राउन गर्ल रैंड्स। तो इफ़ यू ऑल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर के आई वुड बी पोस्टिंग दिस, तो मे बी यू कैन हैव अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट। आई ऑल्सो पोस्ट ऑन पिंटरेस्ट, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई थिंक इट्स रबिया ताहिर अंडरस्कोर। You can also follow me on Twitter if you want to see my me venting out and ranting and saying dumb shit. लेकिन I'll make a post of it on Instagram if you haven't already noted it। लेकिन जो चीज़ आप खुद अगर हाथ से लिखोगे ना वो चीज़, तो जो आपको तब वो पता लगेगा ना, वो एक पोस्ट के स्क्रीनशॉट से नहीं पता लगेगा। लेकिन बहरहाल आई विल पोस्ट अबाउट इट, तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड मे बी शेयर इट इफ़ यू वांट टू। So I posted a story on Instagram abhi ke I am recording a podcast, or like the story if you want a shout out at the end, and a lot of people liked it, so I really wanted to give those people a shout out. Thank you, you guys are the real MVP, you are the OGs। or if you are listening to this podcast, or obviously it's 1:30 a.m. और हर कोई जागा हुआ नहीं है, हर कोई मेरे लिए एक्टिव नहीं है। A lot of people who liked maybe might not be a regular listener of the podcast, लेकिन मतलब कि if you are a regular listener और आपको shout out नहीं मिला and you are pissed about it, तो girl hit me up। I'll मतलब कि I'll talk to you, I'll have proper conversation with you and I'll give you a shout out, and if you want to share anything तो फिर करो। लेकिन that was a way of like interacting with people के like this story, I'll give you a shout out। So basically the shout out people, I don't know मैं इनको बोलूँ क्या, लेकिन जो लोग 1:30 तक जागे हुए हैं वो और are interested to listen their name from my voice is, first of all we have Ikra Tahir। she is literally my own sister, और मुझे लग रहा था कि वो कमरे में सोई हुई है, तो इकरा वाई, और इकरा is not even gonna listen to it। I'm not, I don't know why I'm giving her a shout out।
Anyways, secondly, we have Zoha Saklan. I love you, Zoha. और Zoha is my Twitter mutual. और Zoha जो है, she is really a regular listener, और वो मुझे अपडेट भी हमेशा देती है और रिव्यू भी हमेशा करती है. और थैंक यू सो मच Zoha, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर med school. Secondly, we have, oh, I hope I am pronouncing your name right, girl. Lekin she's also a very number one reviewer, and she keeps me updated. She gives me review every single time, and I hope I pronounce your name well. She's again a Twitter mutual. So her name is Yashika Hingonia. Yashika, I know her name is Yashika, so we'll just stay Yashika tak. Thank you so much, Yashika. I love you so much. Or you are amazing. Second, we have Fozan. Fozan, thank you so much. I hope Fozan is my university friend, but we never interacted until I graduated. So yeah. So Fozan, I hope I see you soon. Next we have Zarifa. Zarifa, I love you so much. Zarifa is my best friend. और जरीफा से जब भी मैं बात करती हूँ तो हमारी 3 घंटे से कम की बात नहीं होती. आई होप जरीफा यू आर वॉचिंग क्वीन चार्लेट. आई होप वी डू आ नेटफ्लिक्स वॉच पार्टी सून. नेक्स्ट वी हैव हादिया सहर. और हादिया सहर इज ऑल्सो an amazing listener, और शी ऑलवेज गिव्स मी हर फीडबैक. पहली बार तो ये हुआ था कि शी रियली रोट अ होल नोट एंड डीएम्ड मी, और मेरे पास अभी भी उसका स्क्रीनशॉट सेव्ड है. थैंक यू सो मच हादिया फॉर गिविंग मी अ डिटेल्ड रिव्यू एवरी सिंगल टाइम. Next we have Kiran Hussain. Kiran Hussain, another Twitter mutual, and she really helped me a lot in a lot of things, and I love the post she does on Instagram. Next we have a lot of people liked it. Fiza Jafri. Fiza, I never interacted with you. So if you're listening to this, so please like DM me if you want to. I don't know if you're comfortable with it, but thank you so much. And I hope you enjoy it, and I love you. Second, we have third, not third, lastly, we have Sarah. Sarah is also a Twitter mutual, and I love Sarah's post. Sarah used to make edits, I think, once. Or like, I love her tweets. Or Sarah, I hope you're doing well. Or Sarah also was one of the first people to give me a feedback on the podcast as soon as I posted the first episode. So, Sarah, I hope you're fine, and I love you so much. Thank you so much for sticking in. And yeah, thank you so much. Or मतलब कि even if you liked the post, and I think it means a lot because a lot of people didn't like the story. I don't know why you didn't. Lekin thank you so much everyone who liked the story. A lot of people might like the story after this recording, or I am so sorry कि मैं आपका नाम नहीं ले पाई क्योंकि मैं तब तक रिकॉर्ड ख़त्म कर चुकी थी. मे बी आई शुड डिलीट द इंस्टाग्राम पोस्ट राइट आफ्टर. लेकिन अभी कोई अगर लाइक करे तो आई एम सो सॉरी. आई एम रियली 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 सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. Okay, that's it. I hope you guys have a great week and a great exam. But again, whatever you guys are doing, I hope you it turns out great. If any of you have a birthday in the coming week, so happy birthday. Make sure you subscribe. I don't know if you guys can tell or not, like मेरा गला बैठ गया, so I should stop maybe talking. And I hope you all enjoyed today's episode. I'll see you guys next week with another episode, which would be about how to have a healthy relationship with your parents. Because I made that poll. So make sure to look forward for that. Subscribe and give me a 5-star rating. And I'll see you guys next week. Also, I am very active on Instagram. I share the books I'm reading, I share the movies I watch, I share the series I watch, and I give a detailed review of it, which a lot of you guys enjoy. So if you're not following me on Instagram, do follow me on Instagram. I'm trying to build up audience over Instagram. I'm trying to मतलब कि get my followers past 1000. So please help me in that. Yeah, bye.